شاکر صاحب کیسے ہیں آپ اس کی آواز میرا آ رہی ہے آپ کو تہ عامر دل بھائی سے آپ کو؟ شکریہ. ابو شاکر صاحب ابھی ریسنٹلی مجھے کسی آدمی نے ایک کلپ بھیجا، میں نے میری نظر سے گزرا ایک کلپ جس میں آپ پتہ نہیں وہ کس عرصے کا کلپ ہے، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، جس میں آپ بیٹھے ہوئے تھے غالب کمال کے پاس. اگرچہ غالب کمال کی ذہنی حالت کے حوالے سے کچھ رپورٹس آئی ہیں تو میں زیادہ اس آدمی میں بات نہیں کرتا، لیکن اب چونکہ یہ ساری باتیں پبلک میں ہو رہی ہیں تو ایک حد تک انسان ان چیزوں کو اگنور کر سکتا ہے. جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی یاسر ندیم واجدی صاحب جو ہیں وہ بدیانت آدمی ہیں، ڈس آنیسٹ ہیں، اور وہ آگے سے کہہ رہا ہے کہ میں بڑا ان چیلنج دیا ہوا ہے تو ان لوگوں کی ہمت نہیں ہو رہی اور وہ نہیں ہو رہی. خیر غالب کمال سے تو میں اس کو تو میں نے بتایا ہوا ہے کہ ایک آدمی کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. ہم نے پھر بھی ایک مفتی صاحب دے دی ہیں، مفتی شمائل صاحب دے کس کو دی ہیں؟ جس بیچارے کو بیسک نہ سائنس آتی ہے، نہ وہ عربی آتی ہے، نہ وہ بھن من ٹیکسٹ پڑھ کے الازواج. کر سکتا ہے، بھن من الازواج اینڈ سو فورتھ. تو ہم نے تو اس کے حوالے ایک مفتی کر دیا ہے، تو اس کی ہمت نہیں پڑ رہی، تو وہ کہہ رہا ہے کہ ڈائریکٹ مجھے ایسے آدمی کی سے بات کرنی ہے کہ جو نہ صرف مفتی ہے بلکہ حدیث سائنسز میں پی ایچ ڈی بھی ہے. خیر اسے تو ایک سیپریٹ چیز ہوگی، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مفتی یاسر صاحب پہ آپ نے پبلکلی ایک ایلیگیشن لگایا کہ وہ بدیانت آدمی ہیں. آج آپ اس کو بیک اپ کریں گے یا آپ کے بارے میں ایک مصرع پڑھا جائے گا کہ بہت رسوا ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے؟ اوور ٹو یور سیلف. نہیں ٹھیک بات نہیں، میں آپ کو 1-2 منٹ لگیں گے پوری بات بتانے کے لیے. تو لیجیے. جب مفتی صاحب جب رمضان میں باہر گئے ہوئے تھے تو میں نے ان کی کئی ویڈیوز اور کلپس سنے، ان کی انٹرویوز، الگ الگ جگہ سے ان کی انٹرویوز سنی اور ان کی سرجیکل سٹرائک سنی. تو میں نے ان کے چینل پہ میں آیا تھا تو میں نے الزام لگایا تھا، یہ الزام لگائے تھے میں نے کہا تھا کہ آپ کے الزام ہے میرے پاس آپ کے ہم خیالوں پہ کہ آپ کے جو ہم خیال ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں. اس کے پاس میں ثبوت بھی پیش کروں گا اور دلائل بھی. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم خیالوں کے پاس آپ ان کے ساتھ بعد میں بات کریں، جو الزام میرے پاس ہے ان کو آپ بتا دیجیے. تو میں نے ان کو بھی کہا آپ کے پاس بھی میرے پاس ڈس آنیسٹی کے تقریباً 3 یا 4 الزام ہیں آپ کے ہی سٹریم میں. اگر چاہیں تو میں ثبوت اور دلائل دونوں دے کے ڈسکس کروں گا. تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ مجھ سے اسلام کے بارے میں سوال پوچھ سکتے ہیں، لیکن اس پہ وہ جانا نہیں چاہتے تھے. تو ایک ایشو پہ ہم نے بات کی تو باقی ایشو پہ نہیں کی. تو میں نے کہا کہ اگر آپ غصہ نہ کریں تو کہ اگر میں کسی دوسرے چینلز پہ جا کے یہ بات کر سکوں. تو یہاں پہ ہماری بات ختم ہو گئی تھی، اتنی بات ہوئی. امیر حق صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے. انہوں نے جی اب میں بات رکھ لیتا ہوں. میں اس وقت موجود تھا جس وقت یہ منافق ابو شاکر جو ہے، اس نے سوری منافق کو ایک صفت ہے، اس میں برا مت مانیے گا. اچھا خیر نہیں ابو کوئی شاکر بات نہیں، جو مرضی کہیے آپ، تھینک جو یو. مرضی جی جی کہیے آپ. جی جی ذرا بہت شکریہ، تھینک یو. اچھا یہ ابو شاکر صاحب جو ہیں وہاں پر موجود تھے، ان کو عزت دی گئی جو ہضم نہیں ہوئی. خیر بار البتہ میں مدعا پر آ جاتا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، میں بھٹک جاتا ہوں تھوڑا ادھر ادھر. تو نہیں ہوا نہیں یہ نہ کہ کہیے مجھے ہضم نہیں ہوئی، میں جی ہضم تو ہوئی، آپ میں کو نے ہضم کرواؤں گا، پیار میں محبت سے بات کی. آپ کو کیپسول میں لگاؤں گا حوصلے والا. ہضم سب ہوگا ابو شاکر، ٹینشن لینی. ہاں مجھے پتا ہے آپ کی ایج ہو گئی ہے، ہاضمہ کمزور ہے، کیپسول آپ کو حوصلے والا دیتا ہوں، ذرا رکیں جی. اچھا خیر یہ غالب ادھر غالب کمال کے پاس نہیں ہے آپ. اچھا سنیں ذرا، اب یہ ہے میرے پاس تو آپ آتے نہیں، غلطی سے کوئی گھستا نہیں، آپ کا بڑا چھوٹا کوئی بھی نہیں. آپ نے بھگا دیا مجھے. امیر بھائی ایسے الزام نہ لگائیے، آپ نے بھگایا مجھے. میں آپ کو سر میں کرتا ہوں، سر کرتا ہوں، آپ ٹینشن نہ لیں، مجھے پتا ہے جھوٹی آپریشن سے الزام پہلے نہ ہوتا لگائے. ہے نا. میں کرتا ہوں آپ کو ذرا انستھیسیا کرتا ہوں آپ کو. اچھا خیر اب یہ جی جی اچھا اب یہ ہے کہ مفتی صاحب کے سامنے جب بات ہوئی تو آپ نے ایک چیز رکھی. آپ نے کہا کہ جناب آپ نے جو ہے نا وہ جھوٹ بولا، یا آپ نے جو ہے ڈس آنیسٹی آپ نے کی. مفتی صاحب نے ایک جملہ بولا، میں آپ کو خاموشی سے سنا تھا، ذرا سنیے گا. مفتی صاحب نے یہ جملہ بولا، لائیو پڑھا ہے. مفتی صاحب نے کہا اگر میری کوئی بات غلط ثابت ہو گئی قرآن و سننا کے یا فیکٹ کے، میں اسی وقت وڈرا کروں گا، ریکٹیفائی کروں گا، معافی مانگوں گا. اس سے بڑی میری آنےسٹی کی اور دلیل کیا ہوگی؟ غلط ثابت ہو، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل لائیں. آپ نے کہا تھوڑا سا ٹائم دیں مجھے، میں ایک ویڈیو جو ہے وہ آپ کو سینڈ کروں گا، لاؤں گا. آپ کو اسپیسیفکلی ٹائم دیا گیا. مفتی صاحب نے اس کو آئیں بائیں شائیں نہیں بگایا، نہیں، آپ کو ٹائم دیا. بیک سٹیج بیٹھے آپ یا گئے، مجھے اب یہ یاد نہیں، آپ گئے یا بیک سٹیج رہے، آپ نے وہ ویڈیو نکالی جو کہ غالباً 5 سال پرانی تھی.
उस 5 साल पुरानी जो कि सेंसस किए गए थे कि इंडिया के अंदर कितना रिलीजियस टॉलरेंस वगैरह भी मौजूद है। खैर, आपने वीडियो निकाली, आपने कहा ये टाइमिंग है। उस वीडियो को मैंने अपने फोन से चलाया, मुफ्ती साहब ने कहा इसमें मैंने क्या गलत बात की है, और मुफ्ती साहब ने एक्सप्लेन किया कि जो बात उसने पेश की है उसका ऑटोमेटिक रिजल्ट ये निकलता है। याद रखें, न्यूज में और व्यूज में फर्क होता है। मुफ्ती साहब ने एक न्यूज के ऊपर अपने व्यूज दिए, और व्यूज देने का हर बंदे को हक है कि वो उसको एक्सप्लेन करे। उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए जो मुफ्ती साहब ने अल्फाज इस्तेमाल किए उसको उन्होंने जहां जस्टिफाई किया। उसके बाद ये बात हुई, सिर्फ एक पॉइंट रखा था, आपने आगे से जुमला बोला मेरे पास और भी हैं। चूंकि उस एक नुक्ते के ऊपर ठीक ठाक लंबी बहस हो गई थी, और चूंकि आप दूसरी बार आए थे, और चूंकि आपको तसल्ली से वो रेफरेंस निकालने का टाइम दिया गया था, लिहाजा आपसे कीमती और ज्यादा अहलियत और ज्यादा पढ़े लिखे और ज्यादा समझदार और ज्यादा बेहतरीन सवाल करने वाले और ज्यादा मुहतात तरीके से बात करने वाले मसरूफ लोग मौजूद हैं। आपके पास काफी ज्यादा टाइम है। वैसे तो आपकी आखिरी रीलें चल रही हैं बगैर मशहूरियों के, मगर कम से कम दूसरे लोगों के पास काफी टाइम है जो इस हवाले से कुछ सीख साख सके, उनको टाइम दे दिया गया। ये सारी बात है। उस पर आपने एक चीज कही थी कैसर भाई, जो कि अबू शाकिर भाई ने बिल्कुल कही थी, इसको मैं बिल्कुल एडमिट करता हूं। अबू शाकिर साहब ने ये कहा कि मैं फिर किसी और चैनल पर जाकर अपना गंद उगल, अपना, मेरा मतलब ये, उस वक्त उन्होंने ये चीज नहीं बोली, उस वक्त उन्होंने ये बोला था मैं किसी दूसरे चैनल पर जाकर फिर ये जो बकबक है ये मैं कर दूंगा। अब वो जारी बात है, इन्होंने जिस चैनल के ऊपर जाकर वो करनी थी वो उन्होंने कर दी। अब मेरी गुजारिश इनसे ये है कि 5 दिन उस चैनल के ऊपर 1 घंटे से ज्यादा बैठ जाएं, मैं मुंह पे हाथ फेर के कहता हूं मान जाऊंगा। यही चैनल है मुसलमानों के जहां आपको बोलने की जगह मिलती है, वरना आपकी भड़ास ना घरों में निकलती है ना किसी चैनल पर आपको अपने निकालने देते हैं। ये मेरा हाशिया था इस पर। जज़ाकल्लाह कैसर भाई। अच्छा अबू शाकिर साहब, आपने ये यहाँ पे जो बात फरमाई कि आपने कहा कुछ इल्ज़ाम हैं और वगैरह वगैरह कि बड़ा आप सेफ प्ले कर रहे हैं कि कोई एलिगेशन नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है कि जो आप कंक्लूसिवली कहें, लेकिन इल्ज़ाम थे तो मैंने उन पे बात कही तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो मेरे हम ख्याल हैं उन पे बात करें, जो मुझ पे इल्ज़ाम है वो बात करें। यही बातें थी आपकी? जी जी जी, ठीक है, यही अच्छा, बात। अब मेरे सप्रेसर्स लगे हैं, बाज़ औक़ात वो मेरी आवाज़ के अलावा किसी और आवाज़ को कैश नहीं करते, लेकिन मैं ये चलाता हूँ। मुझे बताइएगा कि आपकी आवाज़, अगर आवाज़ आ गई है तो सुनिएगा, और फिर कंपेयर करते हैं आपके इस बयान को आपके दूसरे बयान से। हियर वी आर। ठीक है, ठीक है। तो मैंने ये देखा कि वो बहुत ही डिसऑनेस्ट, उनके जवाबात बड़ी डिसऑनेस्टी के साथ हैं। उन्होंने कई सर्जिकल स्ट्राइक लोगों पे डाली हुई है वीडियोस में, वहां पे भी वो डिसेप्टिव और डिसऑनेस्ट थे। जब वो वापस आए तो मैंने उनके चैनल पे मैं गया, तो मैंने उनसे कहा कि उनकी एक इंटरव्यू थी देवबंद के इनके साथियों के साथ, तो उसके देवबंद के साथी ने कहा कि इस्लाम के आगे एक आखिरी दीवार है उलमाए देवबंद। तो मुफ्ती साहब जब वापस आए तो मैंने यही जुमला उनके साथ में बोला कि अब मुफ्ती साहब इसमें कोई सच्चाई है कि नहीं। तो थोड़ा सा कतराते हुए जवाब दिया कि हम सब उलमा इस्लाम के आगे एक आईनी दीवार। मैंने कहा तो ठीक है, पहले तो ये देखा जाए कि वाकई आप आईनी दीवार हैं कि नहीं। तो कहता जो फरमाइए। मैंने कहा पहले तो आपके जो हम ख्याल हैं जो यहाँ पे आपके साथ बैठे हुए हैं ब्लेटेंटली झूठ बोलते हैं, और वो तालीमात जो आप कहते हैं कि इस्लाम अलाउ नहीं करता, ये अपने चैनल पे उस पर अमल कर रहे हैं। That's dishonest। तो वो मुझे बोलते हैं कि चलिए ये हम ख्यालों की तो उनके चैनलों पे आप बात कीजिए, अब मेरे बारे में बात। मैंने कहा आपके अभी तकरीबन 6-7 काउंट हैं डिसऑनेस्टी के। तो मुफ्ती साहब कहते हैं कि देखिए आप मुझ पे इस्लाम पे सवाल कर सकते हैं, लेकिन इन मामलों में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन ये झूठ बोला आपको समझ लगा कि गालिब कमाल के पास जाकर आप कहें कि मुफ्ती साहब के 6-7 अकाउंट्स हैं डिसऑनेस्टी के, और आप ये कहें कि आपके हम ख्याल डिसऑनेस्ट हैं और मुफ्ती साहब डिसऑनेस्ट हैं, और यहाँ पे जब मैं आपसे हेड ऑन ये सवाल करूँ तो आप कहें कि नहीं, उन पे इल्ज़ाम है डिसऑनेस्टी के। हाउ डू यू रिकंसाइल दीज टू स्टेटमेंट्स? नहीं, मैंने तो इल्जाम उनके चैनल पे तो मैंने इल्जाम ही कहा था ना, लेकिन मैं ये भी बता दूं आप पे मेरा कोई इल्जाम नहीं है। नहीं, मैं नहीं, तो खत्म, मुझे छोड़े, मुझे पे बात नहीं कर रहे। नहीं, वहां गालिब कमाल के पास आप कन्विक्शन से कहते हैं कि ये लोग डिसऑनेस्ट हैं, मुफ्ती यासिर डिसऑनेस्ट है। जब आपसे हेड ऑन सवाल पूछा जाए तो आप कहें नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इल्जाम है, ये
الزام ہے یا کنوکشن ہے, مجھے یہ بتائیے گا. کنوکشن, ابھی تو کنوکشن ہوگی نا, کیونکہ وہ سنوائی نہیں کرتے نا. میں ابھی کنوکشن کہہ رہا ہوں, الزام نہیں ہے, یعنی جہاں بھی آپ نے بولا ہے کہ ان پہ الزام ہے. یس, نہیں ان کے سامنے میں سنیے, میں اگر آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ میرا آپ پہ یہ الزام ہے, اچھا, اگر آپ سنوائی نہیں کرتے اس کی تو میرے لیے تو آپ کنوکٹ ہو گئے نا. اچھا, یہ بات آپ کرتے, عمر بھائی صرف ایک ایسا سیکوینس یہ جھوٹ بول رہے ہیں. جی اگر تو آپ یہ صاحب فرماتے غالب کمال کے چینل پہ یہاں پہ بات کرنے کے بعد, تو بندہ کہتا کہ یار چلو ایسی بات ہو سکتی ہے, لیکن غالب کمال کے چینل پہ آپ پہلے جا کے کنوکشن کے ساتھ کہیں کہ یہ ڈس آنسٹ ہیں, اور یہاں پہ آپ سے جب پوچھا جائے تو آپ کہیں نہیں یہ صرف الزام ہے, اور الزام بھی آپ کی طرف سے, آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں الزام لگا رہا ہوں, کہ آپ پہ ان پہ یہ الزام ہے کہ الزام بھی تھرڈ پارٹی کا چلا گیا. یہ ہے وہ منافقت ابو شاکر صاحب جس کی وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ آپ کے بارے میں کہا جائے گا کہ بہت رسوا ہو کہ تیرے کوچے سے ہم نکلے. وہاں پہ بیٹھ کے آپ کنوکشن سے جھوٹ بولتے ہیں, جب آپ سے پوچھا جائے تو آپ کہتے ہیں نہیں میں تو یہ کہتا ہوں صرف الزام ہے. ہاؤ ڈو یو ریکنسائل دیز تھنگس؟ دیکھیے یہ تو آپ ڈس ایگریمنٹ کرتے ہیں. ابھی تو میں 2 اور سٹریموں پہ جاؤں گا, اور اس کے بعد جو دوسرے الزام ہیں ان پہ بھی بات کروں گا. ابھی ختم نہیں ہوا, ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا. آپ کے نزدیک عمر بھائی, آپ کی طرف آنے سے پہلے میں صرف آپ سے اگر کوئی ڈس ایگریمنٹ کا ایک مثال کے طور پہ اسلام کے اگر کسی ایک وجہ سے کسی ایک مسلک میں اگر ایک ڈفرنس پایا جاتا ہے کسی دوسرے مسلک سے, تو آپ کا اختلاف اسلام کے مسالک سے نہیں ہے, آپ کا اختلاف اسلام سے ہے, اور سارے مسالک میں ہماری جو تھیولوجیکل کلیم ہے وہ ایک ہے, اللہ ہے, کتاب ہے, رسول ہے, ختم نبوت ہے, so forth. اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جب آپ شرارت کر کے یہ جائیں گے کہ نہیں کہ میں مسالک میں آپس میں رفٹ ڈالوں گا, تو پھر آپ یہ ایتھیسٹ کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے؟ اگر آپ نے یہ باتیں, یہ سنائی باتیں آپ کو جن کی تفصیل کا آپ کو کچھ بھی نہیں پتا ہے, تو آپ غالب کمال کے پاس کیوں چلے جاتے ہیں جبکہ حارث سلطان یہ کہتا ہے کہ یہ ذہنی مریض ہے؟ وہاں پہ آپ جا کے کنوکشن سے کیوں بات کر رہے ہوتے ہیں؟ آپس میں ان کے اختلاف آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوتے؟ نہیں, میں صرف غالب کے شو میں نہیں گیا, میں وہ دوسرا ہے ایک اور ساحل کے شو پہ بھی گیا ہوں, اس پہ بھی میں نے بات کی اس بارے میں, شاید آپ نے نہیں سنی, اس پہ اور بھی زیادہ ڈیٹیل سے بات. مجھے جو ایک یہ کلپ میری نظر سے گزرا ہے, میں صرف اسی کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں اور وہاں آپ کے بیان نہیں مل رہے ہیں. یہ ہپوکریسی ہے کہ وہاں کنوکشن سے کہیں کہ یہ لوگ ڈس آنیسٹ ہیں, یہاں کہ نہیں صرف ان پہ الزام ہے. دیکھیے, اور وہ الزام کیا ہے اس کا آپریشن ابھی عامر بھائی کریں گے, اس لیے کہ میں آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دیٹ کنورسیشن. عامر حق از, تو اس پہ بات کریں گے. میں تو صرف آپ کی جو انکنسسٹنسی ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس سے پہلے کہ آپ گیند امیر حق کے پاس پھینکیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب کے سامنے تو وہ الزام تھے, اور ان کو چاہیے تھا کہ پورے کیس کی سنوائی کرتے, انہوں نے نہیں کیا, تو ابھی یہ کنوکشن ہو چکی ہے. نہیں لسن, ایک میں اگر کوئی بات کرتا ہوں جس کا تعلق تھیولوجی سے ہے, جس کا تعلق ایتھیزم سے ہے, آپ میرے پاس آ کے کہتے ہیں کہ جناب یہ چیز اس طرح سے ہے, اور میں کہتا ہوں یار کہ نہیں دیکھو میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتا, میں نے کوئی نیشنل کرائم کیا ہے میں اس کو ایوائڈ کرتا ہوں, دیٹ از اے ڈفرنٹ میٹر. آپ اسلام کے مسالک پہ جو کوئی اگر ایک انٹرپریٹیشن کا ڈفرنس اگر کسی جگہ پہ پایا جاتا ہے, اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ یہ جو آپ کر رہے ہیں اس کو شرارت کہا جاتا ہے, اس لیے کہ آپ تو ہمارے تھیولوجیکل کلیم سے آپ آ ہی نہیں رہے ہیں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں ان کی کسی جگہ پہ ویکنس ڈھونڈ لوں. آپ ایوولوشنسٹ ہیں, میری سٹریم میں آپ آئے ایک دفعہ, آپ خود کو مچھر سے بہتر ثابت نہیں کر سکے, بلکہ مان کے چلے گئے کہ آپ میں اور مچھر میں کوئی فرق نہیں ہے, کیونکہ آپ ایوولوشن کو ٹھیک مانتے ہیں. ایوولوشن کے جتنے فرقے پائے جاتے ہیں, جو نیوٹرل تھیوری ہے وہ نیچرل سلیکشن سے نہیں ملتی ہے, جو پنک ایک ہے وہ گریجولزم سے نہیں ملتا ہے. آپ لوگوں میں اتنے ڈفرینسز پائے جاتے ہیں, ایک ایتھیسٹ دوسرے کو ذہنی مریض کہہ رہا ہے, اتنے ڈفرینسز پائے جاتے ہیں, اور آپ کو کنوکشن سے مل رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں چیز ہے یہ فرقے بازی, تو میں اس میں بات کروں, اگر بندہ آگے مجھ سے بات نہیں کرتا تو میرا الزام سچا ہو جاتا ہے. تھوڑا پتہ ہی نہ ہو جائے بیڑے گھر کو پہ تھوڑے. کیسر صاحب, پہلے تو یہ بات ہے کہ میں نے تو ایوولوشن سے بات ہی نہیں کی, میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا میں نہیں جانتا ایوولوشن کے بارے میں, تو مجھے اپنی رائے الگ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے دین اسلام پہ تو بات کی نہیں, میں نے تو صرف جو دین اسلام کے پیروکار ہیں صرف ان پہ ہی اٹیک کیا, دین اسلام پہ تو میں نے بات ہی نہیں کی. چلیے آپ امیر حق صاحب ان کی میں معذرت کے ساتھ ابو شاکر صاحب, اب میں لائیو ثبوت دینے لگوں. آپ کی ڈس آنیسٹی, مکاری, عیاری, فراڈ بازی اور مسلمانوں سے نفرت
का आलम ये है, और आप उन लोगों के पास जाकर बैठकर मुफ्ती यासिर साहब के बारे में झूठ बका है, श्री झूठ बका है, और आपकी किसी किस्म की भी अब कोई बात का कोई एतबार, कोई वैलिडिटी, कोई क्रेडिबिलिटी, कोई रिलायबिलिटी कोई भी नहीं है। ये जरा मैं पब्लिक के सामने चलाने लगा हूं, गालिब कमाल के चैनल पर भी और अभी कैसर साहब के सामने भी लाइव, कोई पीछे जाके सुन ले। कहते हैं मैंने मुफ्ती साहब के पास जाकर कहा मेरा तो इल्जाम आप पर है। मुफ्ती साहब ने कहा इसको छोड़ें, आप कोई सवाल करें, इसको छोड़ दें। ठीक है जी, इन्होंने लाइव अभी भी कहा, और जो कैसर भाई ने सुनाई है गालिब कमाल वाली स्ट्रीम, उसके अंदर भी ये कहा। अब जरा सुनिएगा मुफ्ती साहब ने क्या ये कहा था, छोड़ें, आप कोई और सवाल करें, इल्जाम आप छोड़ें, या पुरानी बातों को ये जरा सुने, ये सुनिएगा। इंटरनेट पे जो इल्हाद फैल रहा है उसके दरवाजा बंद करने के लिए आप और आपके हम ख्याल हैं। मैं इल्जाम लगाना चाहता हूँ आपके हम ख्यालों के साथ भी कि वो ब्लेटेंटली झूठ बोलते हैं विद एविडेंस। और अगर आपको इल्जाम लगाना है तो मुझ पर लगाइए ना, मतलब मेरे सुना आपने, अब आगे सुनते जाइएगा जरा। ख्याल पता नहीं कौन, मैं तो किसी को जरूर यहाँ बैठकर इंडोर्स नहीं करता हूँ। एक आदमी अगर सुन लीजिए, अव्वल तो मुझे नहीं पता आप किस पर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन अगर किसी ने झूठ बोला है तो उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है, आप मेरे ऊपर इल्जाम लगाए। ठीक है, यह बात करें यहाँ। देखा, मुफ्ती साहब कहते हैं मेरे ऊपर इल्जाम, जरा सुनिएगा, अब आगे भी सुनते जाइए मुकम्मल, कि मुफ्ती साहब ने ऑन किया है कि अगर मेरी को गलती है, ये बोलेंगे मुफ्ती साहब। इस्लाम की फला ने ये कहा, फला ने ये कहा, उसकी हमने ठेका लिया हुआ है। ठीक है, तो उनके खिलाफ जो मेरे चार्जेस हैं, किसी दूसरे चैनल पे जाके मैं इल्जाम लगा दूं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, मैं आप पे भी इल्जाम लगा, हाँ, फपे कुटनी तरह दूसरी जगह जाके मासी बनूंगा मैं। आगे सुने। हाँ, वो लगाइए। ये देखें, मुफ्ती साहब ने कहा मेरे पे कोई इल्जाम है, तो वो मुफ्ती साहब ने कहा हाँ लगाइए। जरा दोबारा सुने इस हिस्से को, सुने। उनके खिलाफ जो मेरे चार्जेस हैं, किसी दूसरे चैनल पे जाके मैं इल्जाम लगा दूं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, मैं आप पे भी इल्जाम लगाना चाहता हूँ। हाँ, वो लगाइए। मोर देन वन, सेवरल काउंट्स। ओके जी। पहले काउंट पे आ जाते हैं कि आपकी जो सर्जिकल स्ट्राइक थी, एक डीएनए का कोई, यानी यहां से आगे वो बात लंबी है, ये एतराज रखेंगे, फिर ये चले जाते हैं, फिर ये लिंक लेके आते हैं, मुफ्ती साहब उस लिंक पे बात करते हैं, वही बात जो मैंने रिपीट। मेरा मकसद ये था उस झूठ को बेनकाब करना जो ये दूसरों के सामने जाकर वहां हिंदुओं को सुपर चैटे लेने के लिए, कमाइयां करवाने के लिए, धंधा करने के लिए, मादरत के साथ, क्योंकि यही हो रहा है और ये भी पार्ट उसका बनते जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली है तो बुजुर्ग हैं, बनते जा रहे हैं। तो ये बकायदा झूठ बोला, ब्लंट जो है ना, वो बोल्डली इन्होंने वहां पर जाकर झूठ बोला, इल्जाम लगाया कि मुफ्ती साहब ने ये कहा, छोड़ो जी मेरे इल्जामात को, मैं आप कोई और सवाल करो। मुफ्ती साहब ने कहा रखो, और फिर मुफ्ती साहब ने उसका डिफेंस किया और कहा, आगे जुमले हैं आगे जाकर काफी, क्योंकि 2 बार आए हैं, तो मैं सिर्फ वहां से सुनाना चाहता था जहां इन्होंने कहा कि मैंने कहा आप पर इल्जाम लगाऊंगा, उन्होंने कहा छोड़े इल्जामात को, वो सुनाना चाहता था। तो मेरी गुजारिश ये है कि अबू शाकिर साहब जो हैं, एक तो एज इतनी हो चुकी है, उसमें कोई शक नहीं है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अफनुनम्मिरहु नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क, सूरह यासीन में अल्लाह फरमाते हैं ये जिनकी उम्रें बड़ी लंबी हो जाती हैं, नुनक्किसहु फिल खल्क, उनके अंदर बचपना और जिद और अक्खड़ पिजाज आपको इल्ला माशाल्लाह दिखाई देता है, वो बचपना आ जाता है। तो ये अब बुदारी बात है, एज के उस हिस्से में आ चुके हैं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੁੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਈਦ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ठीक है जी, तो मकसद कहने का ये है कि सवाए निस्तो नाबूद और सर्वनाश करने के इनके वजूद का कोई और मकसद नहीं होता। ये वो चूहे हैं जो कपड़ा टुकते हैं और टुक कर खाते नहीं है, बल्कि दूसरों का नुकसान करते हैं। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है। तो बहरहाल अबू शाकिर साहब, एक बार हमारी नजर, हम समझते हैं एक बार हमारी नजर के अंदर जो बंदा डिसऑनेस्ट, झूठा, मक्कार साबित हो जाए, हम उसके बाद उससे, मैं तो कम से कम उसके साथ बाद में बात नहीं करता, सीधी जो बात है। मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरी as far as मेरी उम्र इज कंसर्न, अभी तो मैं जवान हूँ। दूसरा, आपने कहा कि यानी अभी मजीद अज़ाब हम पे आने वाला है नहीं? नहीं, मैं तो यही कह रहा था, मैं तो कह रहा हूँ अभी तो मैं जवान हूँ। बाकी आप ये कहते हैं कि ये वो जवान है, ये वो जवान है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जवानों को कह रहे होते हैं, और तुम्हारी मेहरबानी मेनू बहन दो गोडे जवाब दे गए ने। ये वो हैं कि जब लंबी लाइन देखते हैं, इनकी जवानी निकल जाती है, कहते हैं सीनियर सिटीजन हूँ, मुझे जगह दे दें। अमीर, ये मेरी भी एक मिनट, मेरी मैं तेरी गल पूरी सुनी है, चुप करके एक मिनट मेरी भी गल सुनना पूरी चुप करके। जिंदाबाद। मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुझे डिसऑनेस्ट समझते हैं,
मेरी वी आर म्यूचुअल, मैं आपको डिसऑनेस्ट समझता हूँ, लेकिन साबित कैसर करना साहब होगा, मेरे मैंने साबित किया है। साबित करें। साबित कुछ नहीं किया। अच्छा कैसर साहब, मैंने आप पे कोई इल्जाम नहीं होगा, आपके खिलाफ मेरे पास कोई इल्जाम नहीं। उन्होंने मेरी तरफ आए, अब आप मुझे समझ, आपने कहा ना म्यूचुअल, ये आर्ग्यूमेंट या ये स्टेटमेंट म्यूचुअल है, मैंने तो पब्लिक में लाइव साबित किया है। कैसर भाई ने स्ट्रीम चलाई, आपने बोला कि मुफ्ती साहब को कहा इल्जाम है आप पर, मुफ्ती साहब ने कहा छोड़ो इल्जाम को, सवाल रखो। मुफ्ती साहब ने कहा इल्जाम है मुझ पर लगाएं, आपने कहा 3-4 जगह पर पॉइंट्स है, मुफ्ती साहब ने कहा रखें, ठीक है, आपने एक से शुरू किया, आप साबित हुए, हमें साबित कर दें। ठीक है, आप जो आप पे इल्जाम है वो चाहते हैं, वो आप सुनना चाहते हैं? आप वो मेरी जात, मेरे पास, मेरी तरफ आइएगा। चल रहा है ना, जो चल रहा है अबू शाकिर साहब, कि आपने कहा कि मुफ्ती साहब पे जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा छोड़ें इस्लाम पे बात करें, जबकि यहाँ पे तो बात हुई है कि नहीं, वो कह रहे हैं ठीक है इल्जाम लगाएं, और फिर इल्जाम लगाया गया, फिर उसका दिफा किया गया। उन्होंने दिफा नहीं किया, बात ठीक होगी ना यार। जो मेरी उनसे स्ट्रीम हुई है, आपने सुनी है पूरी? मेरी गुफ्तगू उनसे जो हुई है, मैंने सुनी है ना, मैंने सुनी है। मैं इस चीज का गवाह हूं। मेरी एक बात सुनिएगा अबू शाकिर साहब, याद रखें एक चीज मैं आपको बताता हूं, चूंकि 2 पार्टीज हैं, आप एक ऑपोजिट आइडियोलॉजी के हामिल हैं, आप ये कहेंगे कि जी कोई वो डिफेंस नहीं किया, कोई चीज नहीं, हमने सुना है, अब हम दूसरी पार्टी हैं, इसी वजह से आपके नजदीक हम डिसऑनेस्ट हैं। कहते रहे, साबित जब तक पब्लिकली नहीं करेंगे। हमारे नजदीक आप हैं, हमने आपको साबित कर दिया। मुफ्ती साहब ने वहां एक्सप्लेन किया है कि न्यूज ये बता रही थी कि रिलीजियस टॉलरेंस है, दैट मींस कि किसी के साथ कोई ज्यादती कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं, फिर झूठ, देखिए फिर झूठ। और क्या है, और क्या था? जो न्यूज आइटम जो थी वो कई चैनलों ने ब्रॉडकास्ट किया, सिंपली उसने ये कहा है कि हिंदुस्तान में 2015 के सर्वे के मुताबिक 10 में से 8 लोगों ने रिलीजियस फ्रीडम के हक में बात की है। ये सर्वे 21 जून से लेके 27 जून तक चला है। दैट्स इट, उसने आगे बढ़ गया। उसके अलावा उसने कोई भी बात नहीं की। उसके अलावा नहीं, मुंह में अल्फाज डाल, मुफ्ती साहब कोई बात नहीं। क्या मतलब रिलीजियस फ्रीडम को वोट किया, वो सारी बात मुफ्ती साहब कर सके हैं, वेस्ट ऑफ टाइम है रेपिटेशन उसकी करना। मुफ्ती साहब ने वहां बात रख दिया, उन्होंने वो बात क्यों की? मेरा मकसद जो था वो लाइव आपको इस चीज के ऊपर एक्सपोज करना था कि आपने भी अपने मुंह में अल्फाज डलवा दिए वहां पर कि मुफ्ती साहब ने कहा जी इल्जाम कोई नहीं, छोड़ें, आप सवाल रखें। वो एक्सपोज हो गए आप। जब तक आप साबित नहीं करेंगे तब तक आपने। आपसे बहुत शुक्रिया अबू शाकिर साहब, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। नो कोई नहीं, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मेरे पे जो इतराज है जुम्मे को लाइव स्ट्रीम पर आ जाइएगा, वो इतराज रख लीजिएगा, ठीक है भाई? मेरे को मैंने तो क्या कि आपके चैनल में जाता नहीं, तो नहीं आए ना, हाई ब्लड प्रेशर की दवाई खा के आइएगा। नहीं, आप आपके चैनल पर नहीं, आई विल नॉट कम टू योर चैनल। अबू शाकिर साहब, हम एक पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट पे बात खत्म कर रहे हैं। आपका अभी तक स्टांस यही है कि जब आपने ये इल्जाम लगाया मुफ्ती साहब पे, तो उन्होंने जवाब देने के बजाय ये कहा कि आप ये बात छोड़ें, इस्लाम की बात करें, यही कह रहे हैं आप मुझसे इस्लाम पे सवाल कर सकते हैं। उन्होंने आपके लगाए हुए इल्जाम का कोई जवाब नहीं दिया। नहीं, ये पहला इल्जाम था ना, तभी सुनवाई हुई है। जो ये बात कर रहे हैं डीएनए के प्रोग्राम के बारे में, उसकी सुनवाई हुई, बाकी के नहीं। मैंने कहा और आप ये कह रहे हैं कि जब आपने ये इल्जाम लगाया तो उसका फिर मुफ्ती साहब ने आगे से जवाब दिया? नहीं, मुफ्ती साहब ने जवाब दिया, लेकिन वो अपने झूठ पे डट गए, उससे पीछे नहीं हटे। उसका फैसला आपने नहीं करना। नहीं, ठीक है, मैं तो अपना ओपिनियन दे सकता हूँ। 2 क्लेम, हाँ नहीं, आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिए। आपके 2 इनकंसिस्टेंट बयान हमारे सामने आए हैं कि आप एक एथियस्ट के चैनल पे जाके कहते हैं कि जब मैंने सवाल किया तो मुफ्ती यासिर साहब ने कहा कि आप ये छोड़ें, आप इस्लाम पे बात करें। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने जवाब दिया लेकिन वो जवाब ठीक नहीं था। ठीक, नहीं, उन्होंने यही कहा, उन्होंने जब मैंने उनसे कहा, आप सेटिस्फाई नहीं हुए, आसान लफ्जों में आप सेटिस्फाई नहीं हुए, ये है ना? मैं सेटिस्फाई की बात नहीं है। उन्होंने एंकर के मुंह में जुमले डाल दिए जो उन्होंने नहीं बोले। आप उनकी क्लैरिफिकेशन से सेटिस्फाई नहीं हुए, आपको यही लगा कि वो डिसऑनेस्ट हैं, उन्होंने कोशिश की समझाने की, मगर आप सेटिस्फाई नहीं हुए, ऐसा ही है ना? एग्जैक्टली। बस ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपका पहला बयान गलत साबित हो गया कि उन्होंने बात नहीं की। जी ठीक है, दैट्स इट। अबू शाकिर साहब, बहुत अफसोस हुआ मुझे, आपकी तकरीबन हर बात से ही मैं इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन हमेशा इज्जत और एहतराम से बात की। लेकिन एक बात
कही जाती है कि जिस कंपनी में आप उठते बैठते हैं उसका कुछ ना कुछ असर आप पे हो जाता है। मुझे ये उम्मीद थी कि जिस कंपनी में आप जाते हैं इन एथियस्ट के पास, शायद वो आपकी शख्सियत से कुछ ना कुछ सीखें कि इख्तलाफ कैसे किया जाता है, इज़्ज़त एहतराम कैसे डिस्प्ले किया जाता है। लेकिन अफसोस ये है कि उनका रंग आप पे चढ़ गया। आप ऐसे नहीं थे, यू आर नॉट लाइक दिस, कि इतने ब्लेटेंटली तरीके से आप वहाँ पे जाके गलत बयानी करें, झूठ बोले कि मैंने जब कहा, इल्ज़ाम लगाया तो मुफ्ती यासर साहब ने कहा ये बात ना करें कोई और करें, और यहाँ पे बात खुल गई है कि नहीं उनका जवाब तो था लेकिन मुझे वो जवाब अच्छा नहीं लगा था। भाई आप दिस इज पहले नॉट सुन अबू लीजिए, शाकर फिर दैट वी यूज्ड टू नो। आप नहीं पहले आप सुन लीजिए खुद। आमिर हक की बात ना सुने, क्योंकि आमिर हक के साथ भी मेरे झूठ बोलने के इल्जाम। मैंने आपकी बात सुनी है, मैंने ये आपकी टाइम बात वेस्ट, सुनी अबू शाकर हाँ साहब। ये टाइम मैं वेस्ट इस कर पे रहे हैं इसके आप। बाद हाँ मैं इजाजत चाहूंगा ओके इसके बाद अबू शाकर साहब से, ओके ओके, लेकिन नो मैं प्रॉब्लम। आपकी दो बातें हैं अबू शाकर साहब, ये दोनों आपकी बातें हैं कि मेरे इल्जाम जब मैंने लगाया तो उन्होंने कहा कि नहीं आप कोई और बात करें, और फिर यहाँ कह रहे हैं कि नहीं उन्होंने जवाब दिया लेकिन मैं मुतमिन नहीं था। दीज आर योर, या आमिर हक इस पे कुछ नहीं कह रहा, आप कह रहे हैं दोनों बातें, और बहुत ही अफसोस हुआ मुझे। दिस इज नॉट समथिंग वी वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू सर, बहुत ही अफसोस हुआ। मेरा ख्याल थोड़ा सा टाइम ऑफ लीजिए, उन लोगों के पास उठना बैठना छोड़ें, वो तो चलते फिरते झूठ का पलंदा है, चलते फिरते झूठ का पलंदा है वो तो, अनबिलीवेबल। इजाजत चाहूंगा आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके ओके बाय जी। कह किसे रहे हैं वो आमिर हक जी, जुड़ कह किसे, जो लाइव वीडियो इनकी जुबान सुना रहा है, अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व अर्जुलहुम बिमा कानू यक्सिबून। हमने तो वो गवाही दी है जो आपकी जुबान से है सर, हमने तो नहीं बोली। मुझे बहुत बेहतर की तवक्को थी अबू शाकिर साहब से। बहरहाल चलें, अच्छा हुआ कि पब्लिक रिकॉर्ड में एक चीज़ आ गई है, पता चल गया है कि बात क्या हुई। अब ये भी क्लिप्स जो हैं वो हम इंशाल्लाह अज़ीज़ आगे पीछे जिन लोगों ने हमें भेजे हैं उनको हम भी भेजेंगे कि ये जो है अब खुद अपने मुंह से मान गए कि नहीं जवाब तो दिया गया था। कैसर भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, कैसर भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस तरह के जो बुजुर्ग हैं, सही बताऊं, अगर आप इनका क्लिप लगाएंगे, ये अपने बच्चों में भेजेंगे और नीचे लिखेंगे देखो तुम तो मुझे रोटी नहीं पूछते थे, देखो मैं 2-2 घंटे जाया कर रहा हूं मुसलमानों की स्ट्रीम के, तुम तो एंड टाइम पे मुझे छोड़कर चले गए, देखो मैं मुसलमानों का सर खा रहा हूं। तुम्हारा गुस्सा मैं कैसर भाई की स्ट्रीम पर निकाल आता हूं, मुफ्ती साहब की स्ट्रीम पर निकाल आता हूं, मैं अपना कोटा पूरा कर रहा हूं, जाओ तुम मुझे छोड़कर चले गए, जाओ तुसी नहीं थे कोई और सही। तो इसलिए इनके क्लिप इनको लेना ही नहीं चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बीइंग एन ऑडियंस में आपको कह रहा हूं, इनके ऊपर टाइम ही नहीं वेस्ट करना चाहिए। नहीं, इनका पैटर्न जो है ना, हाँ, पब्लिक एलिगेशन की बात पैटर्न आ समझ गई ना। लीजिए। जी जी, नहीं वो ठीक है, नहीं ये वाली तो बिल्कुल ठीक। एलिगेशन इन पब्लिक की बात है ना, इसलिए वो जरूरी जी हो जी गया था। जी जी जी। अभी आपके आए थे, क्या कहूँ, दोस्त कहूँ पता नहीं आपको वो हिस्सा दे दोस्तों के खाते में न डाला करें, लेकिन मैंने देखा नहीं है कौन सा। बात तो अबू शाकिर साहब अभी तशरीफ लाए थे। ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, अबू शाकिर अगर सुन रहे हो तो कल आपसे मुलाकात करने के मुतमन्नी हैं। नहीं, मेरा ख्याल आज जो हो चुकी है वो नहीं आएंगे। अच्छा ये बात है। नहीं, वो खुद आमिर भाई मान के ज्वाइन गए कर हैं लीजिए। कि जो उन्होंने कहा है कि मैंने मुफ्ती यासर साहब से कहा, पहले तो उनकी ये जो बातें थी, खैर आप वो सुनिएगा वो हिस्सा बीच में से, आप अच्छा। ज़्यादा एंजॉय करेंगे। समरी उसकी ये है कि यहाँ पे उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने ये कहा कि ये इल्ज़ाम थे मुफ्ती यासर साहब पे और उनके हम नवाओं पे, तो मैंने उनका वो क्लिप चला दिया कि आप तो बड़ी कन्विक्शन से कह रहे थे कि जनाब इल्ज़ाम नहीं, पक्की बात है कि ये लोग डिसऑनेस्ट हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। और मैंने जब मुफ्ती यासर से पूछा कि ये पता नहीं आपको बात करें, तो आगे से उन्होंने कहा ये बात आप बाद में कीजिएगा मुझसे, ये नहीं इस तरह की बातें। तो वो दोनों बातें क्लियर हो गई। मैं प्रीवी नहीं था जो पहली कन्वर्सेशन हुई थी। वेलकम बैक आमिर भाई। तो उस वक्त उन्होंने वो पहले हिस्से पे वो खैर वो पब्लिकली डिबंक वैसे ही हो गए कि इधर कह रहे हैं इल्ज़ाम है, वहाँ कह रहे हैं कन्विक्शन है। और दूसरे हिस्से में जब उन्होंने जो ये कहा हुआ था कि मैंने जब मुफ्ती यासर साहब से ये इल्ज़ाम लगाया उन पे, तो उन्होंने आगे से कहा कि ये बात आप छोड़ें, इस्लाम की बात करें। वो भी पता चल गया यहाँ पे कि नहीं आपने जवाब दिया था। तो फिर कहते हैं नहीं मैं सैटिस्फाई नहीं हुआ। वो आपकी सैटिस्फैक्शन की ज़िम्मेदारी तो किसी पे नहीं है भई। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं कि आगे से जवाब नहीं दिया? तो बड़ी यानी कि बल्कि कैसर भाई, उन साहब ने मगलूब कमाल की स्ट्रीम पर जाकर बाकायदा वहां एक डिसऑनेस्टी दिखाई है, यानी खुद वो उनकी डिसऑनेस्टी साबित हुई है। अगर वो कभी मेरे पास आएंगे, और हो सकता है मुझे सुन ले तो अब ना आए, और ये उनकी डिसऑनेस्टी की दूसरी दलील होगी कि कहीं मैं एक्सपोज ना हो जाऊं, तो मैं इस पर जरूर बात करूंगा। चले जबरदस्त। अमर भाई वेलकम बैक, कैसे हैं आप? बल्कि मैं भूल ना जाऊं तो मैंने स्टिकी नोट्स के ऊपर लिख कर लगा लिया अपने कंप्यूटर के बराबर में। बहुत अच्छा हो गया। बहरहाल मुफ्ती साहब, मैंने वो अबू शाकिर साहब जो आए थे,
गो के वो जारी बात है कि एक जो जिसे कहते हैं कि वो जब जो है ना वो एक खास एक जानवर होता है, वो जब बहुत बूढ़ा हो जाता है तो उसको फिर मार दिया जाता है, तो क्योंकि नुकसान पहुंचाता है। तो खैर बहरहाल ये है मुफ्ती साहब कि मैं उनके सामने ये चीज रख रहा था कि मैं उस जगह पर मौजूद था। नहीं एक जब मिनट, आपसे एक वो गिला शिकवा मिनट कर रहे हैं। आमिर भाई, ये जो आपने एनोलॉजी दी है ना, इसकी थोड़ी वजाहत कर दें। पता चला कि इसकी छोटी सी क्लिप बनाकर जो है इसके कुछ और मतलब निकाल लिए गए। और कैसर भाई की स्ट्रीम है, कैसर भाई की स्ट्रीम है, और मुनाजरा भी, डिबेट भी होने वाली है, पता चला यही चला दिया गया। मैं बंदरों की एक कबील की मिसाल दे रहा हूँ कि जब उन्हें बंदर जो है वो बहुत ज्यादा बूढ़ा हो जाता है तो उसको मार दिया जाता है, उसको कबीले से निकाल। तो मैं उनकी मिसाल दे रहा था। तो ये जानवरों के अंदर होता है, ऑब्वियसली हम तो इंसान हैं जो मानते हैं उनको अपना कोई, तो वो उस हवाले से बात करेंगे। अच्छा सर, मैंने ये इनसे सिंपल सवाल रख दिया था, जो उन्होंने ब्लेंडर यहाँ पर मारा उसको तो हमने रख दिया। अब मैं उसका जिक्र इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आपने कोई इंपॉर्टेंट नुक्ता रखा होगा, तो मैं चाहता हूँ वो जब आपके सामने आए वही रखें। यहाँ पर तो वो बड़ा बुरी तरह एक्सपोज होकर चले गए हैं। अब उनके पास आखिर में उन्होंने ये बेसिकली जो इधर ये छुपन छुपाई खेल रहे थे, कभी इधर कभी उधर, तो उसका मकसद जो था वो यही था कि बिल आखिर उनको कोई लाइमलाइट मिले और वो एक ऐसे चैनल पर जाकर बैठकर जो दिल में आए वो उगल सकें। बहरहाल बुजुर्ग हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आखिरी उम्र में उनको अल्लाह ताला हिदायत दे, हमारी दुआ है। आमीन। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, बस यही दुआ है। मैं तो बल्कि मुंतजिर था, कई महीने पहले वो मेरी स्ट्रीम पर आकर ये कह के गए थे, और फिर गालिबन इसी मगलूब कमाल या हारिस सुल्तान की स्ट्रीम पे भी जाकर इन्होंने कहा था कि अब तो मैंने हिदाया किताबुन निकाह का मुताला शुरू किया है, अब तो मैं इन लोगों को हिदाया सही एतराज करूंगा इनके ऊपर। मैं तो मुंतजिर हूँ कि भाई हमें हिदाया पढ़ाएं आकर। अबू शाकिर साहब कम से कम पहली जो 3-4 लाइनें हैं वही समझा दें। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अल्लाह के रसूल ने बड़ी बड़ी पेशगोइयाँ दी हैं जिनको अल्लाह के रसूल ने कवर किया है, और यकीन करें कि अल्लाह के रसूल की हिकमत थी, अल्लाह ताला की हिकमत थी कि उनकी जो डिटेल्स हैं उनकी तरफ इशारा नहीं किया, वो उनकी हिकमत थी मगर इशारे दिए। अगर थोड़ी सी डिटेल आती तो मजीद हमें खबर मिल जाती कि इस तरह के शगुफे आएंगे भन मिनल अजवाज जैसे, कि जिनका आपको पता चल जाएगा। कोई सूरह कोविद लेकर आ रहा है, सूरह यूट्यूब, वो बेनकाब होता है, तो वो जियो फिजिसिस्ट सेल्फ प्रोक्लेम्ड वो कहता है जी मैं अरबी पढ़ाता रहा हूँ। आप उसका क्लेम सुनिएगा कभी, आप सुना, कहता है मैं कई साल अरबी लुग़त फुसहा पढ़ाता रहा हूँ। ओ भाई, अगर तू पढ़ाता रहा है, इमाम सीबवे की भी तौबा, बसरी और कूफियों की तौबा, ठीक है जी, अगर तू पढ़ाता रहा है। अल्लाहु अकबर, अजीब। ये वही है जो भन मिनल अजवाज कह रहे थे, ये वही साहब है। जी, वही है। अच्छा, ये इस बंदे ने एक दफा ये भी कहा कि मैं इतनी अच्छी अरबी जानता हूँ कि मैं कुरान पढ़ूं तो मुझे तर्जमे की जरूरत नहीं होती, मैं पढ़ के मुझे पता चलता क्या रहा। अगर किसी बंदे ने कह दिया कि यार तुम्हें डिबेट की बड़ी पड़ी है लेकिन डिबेट हम अरबी में करेंगे, तो फिर उसके तो एटम्स भी जा रहे कई। मैंने खैर अभी वो एक क्या नाम था इनका, अबू शाकिर साहब, इनको बताया था कि उसे कहें कि अपनी जरा हमने उसको एक मुफ्ती दिया है, मुफ्ती इस्माइल साहब की बात कर रहा हूँ। बहुत बड़ा काम होता है मुफ्ती बनना, और वो कह रहा है कि नहीं मुझे इससे भी आदमी बड़ा, तो हमें भी तो मुकाबले में ला के दो ना यार, जिससे हम कहें कि भाई हमारी तरफ से एक हदीस साइंसेस का डॉक्टर जा रहा है, एक मुफ्ती जा रहा है, और मुकाबले में कौन है? भन मिनल अज़वाज जियोफिजिसिस्ट। वो एक असल में वो मुफ्ती साहब के साथ बजिद इसलिए हैं, एक मूवी का सीन है, उस मूवी के सीन में एक बंदा जो है बड़ा चैंपियन, अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल का चैंपियन होता है, तो वो एक बंदे से रेसलिंग जो होती है ना वो हार जाता है। तो जब वो हारता है, बड़ा वो सर झुका के कहता है यार मैं इससे हार गया, तो वो थापड़ा मार के उसको कहता है टेंशन ना ले, तो प्रोविंशियल लेवल पर या स्टेट लेवल के चैंपियन से हारा है, टेंशन ना ले। मकसद ये कहने का है कि ये जो इनके भन मिनल अज़वाज हैं, इनको दुख इस चीज का है कि अगर हम एक स्टूडेंट के साथ या एक मेरे जैसे तालिब इल्म के साथ भिड़ बैठे और वहाँ जो है वो परेशानी का सामना, शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा मेरे जैसे एक अदना से तालिब इल्म के सामने, तो मुफ्ती इस्माइल साहब हों या मुफ्ती यासिर वाइदी साहब हों, कम से कम वो अपनी जो है कमर तो बचा सकेगा। वो ये कहेगा यार मैंने अगर थप्पड़ खाए हैं तो चलो किसी पहलवान से खाए हैं जी, तो मैंने किसी बच्चे से नहीं खाए। ये मकसद है बेसिकली। ये नहीं चलो कि थप्पड़ बहाने कुछ व्यूअरशिप रिवाइव हो जाएगी। और मैं एक बात, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, मैं इस वक्त एक बात जरूर यहाँ पर कहना चाहता हूँ। जिस बंदे ने हिंदुओं की आंख का तारा बनना है, जिस बंदे ने एक्स मुस्लिम मूवमेंट की व्यूअरशिप अपनी तरफ लेनी है, जिस बंदे ने सुपर चैट का कटोरा जो है उसको भरना है, और जिस बंदे ने चिल्लर बटोरना है इस्लामोफोब से,
وہ مفتی صاحب سے, کیسر بھائی سے اور دیگر سیم بھائی ہیں ہمارے, دیگر دوست ہیں ماشاءاللہ, ان لوگوں کا نام لے کر ان کے نام پہ سٹریمیں کر کے, ان کو للکار کے, ان کے بارے میں بد کلامی کر کے, یہ ان کی آنکھوں کے تارے بنے ہوئے ہیں جی. ہم نے جناب مسلمانوں کو جناب دیکھو کیا کیا ہوا ہے. تو جتنی نفرت اسلامو فوبس کی ان اسلام کے مجاہدین کے لیے, مجھے یہ کہہ لینے دیجیے گا بلا. A few moments later. اچھا مجھے اجازت دیجیے قیصر بھائی اور بقیہ حضرات. کیسر بھائی آپ اس سے پہلے جائیں, سوری مفتی صاحب آپ اس سے پہلے جائیں. ابو شاکر صاحب بیک سٹیج ہیں اور میں چاہ رہی تھی کہ ان سے آلریڈی تقریباً 30-35 منٹ بات ہو چکی تھی, تو اس کو ذرا آپ کنکلوژن کی طرف پلس اپنی اسٹریم کی طرف ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا. مفتی صاحب اب تو آپ کو ایسے رکنا پڑے گا کہ آپ کھانا کھا کے اٹھنے لگے اور کہا جائے چائے تیار ہو گئی آ رہی ہے. تو آپ کو بیٹھنا پڑے. جی ابو شاکر صاحب کیا حال چال ہیں؟ میں تو صرف زیادہ وقت نہیں لوں گا, میں تو صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ کل آپ نے, ویسے تو میرا ارادہ نہیں تھا آپ کی لائف سٹریم پہ آنے کا, لیکن آپ نے ایکسٹینڈ کیا ہے انویٹیشن, تو کل میں آپ کی لائف سٹریم پہ ضرور آؤں گا اگر میں اندر آ سکا. اگر کل نہ آ سکا تو اس سے اگلے ہفتے مجبوری بن گئی آپ کی آنا. بالکل مجبوری بن گئی ہے, ابھی آپ نے چیلنج کیا. باقی اگر میں نے کوئی غلط بیانی کیا, مجھے اس میں معافی مانگنے میں کوئی شرم نہیں آئے گی. چلیے پھر کل ہی مانگیے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے؟ کل اگر میں آ سکا, اگر میں گھس سکا اندر. پچھلی دفعہ بڑی مشکل سے نیچے میسج کر دیجیے گا, عامر بھائی کھینچ لیں گے آپ کو ہاتھ پکڑ کے. جی میں آپ کے لیے سر اسپیشل. ٹھیک ہے کل پہنچ جاؤں گا. تھینک یو, کل پہنچ جاؤں گا. چلیں جی, شکریہ, بائے بائے. میں نے کہا جن کی خاطر آپ نے نمک پارے, پکوڑے, پتیسا اور برفی منگوائی تھی وہ تو نہ آئے, اور آپ نے چٹی لگائی تھی, میرے خیال سے وہ کہہ کر تو نہیں آئے. جی ہاں, وہ ابو الماردی صاحب پیچھے بیک اسٹیج میں, I'm sorry میں آج نہیں لے پا رہا ہوں آپ کو, لیکن آپ ایز اے میسنجر تو ہمارا کام کر ہی سکتے ہیں. تو ان کے لیے آج ہم نے ٹی پارٹی رکھی تھی ابو شاکر کے لیے. تو کل وعدہ کیا تھا انہوں نے قیصر بھائی کے اسٹریم پر کہ وہ آج آئیں گے, اور میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو جگہ نہ ملے تو کامنٹس میں بتا دیجیے گا, ہم آپ کے لیے راستہ بنائیں گے اور کھینچ کے لائیں گے اوپر. تو لیکن وہ کامنٹ میں بھی نہیں دکھے. تو خیر چلیں کوئی بات نہیں, پھر کبھی بات ہوگی ان سے. چلیں ٹھیک ہے, جزاک اللہ حضرت, بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام, تمام دوستوں کو السلام علیکم.